So students, next type of force is electrostatic force. This is a force which is exerted on from a charged body. This force is exerted from a charged body to on the body which is either charged or uncharged. Okay, this is the force which is exerted by the charged body. CHARG is the charged body on the body which is charged or uncharged. For example, let us do an experiment. Okay, take a plastic straw. Do you know plastic straw? What it is? I think you all among you have drink Maaza with a plastic straw. Whatever juice, whatever cold drinks you drink in a glass, from a glass, how do you suck that? Using the straw. That is of made up of plastic. So take that straw. And best example, when you buy a fruity, the fruity seller will give you a straw, plastic straw. Okay, take that straw. Okay, now cut that straw into two equal pieces. Okay, and suspend one straw to a table in this manner. Suspend one straw to this table. And what do you do? The another straw what you will have, just you take the straw, take that another straw and rub on a paper. Okay, rub on a paper. Immediately after rubbing on the paper, what do? You take the straw and go near to the straw which is suspended to that. Make sure that you should not touch the both straws. You should not touch the both straws. Now once you bring the free straw to near the straw which is suspended, you will be observing that this suspended straw will be moving towards the free straw. Why? Because this free straw you have rubbed on the paper. Because of rubbing activity, the straw has been charged. Okay, this has been charged. These charges will attract the straw which is suspended. As a result, the suspended straw will be moving towards the charged straw. This force which is exerted by the free straw is called electrostatic force. ओके बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. आप बहुत मरतबा शायद प्लास्टिक के स्ट्रॉ से जूस पिए होंगे. फ्रूटी वगैरह अगर आप खरीदेंगे तो दुकानदार फ्रूटी के साथ क्या देता? एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ देता. ओके, उस स्ट्रॉ को लेकर उसके दो इक्वल पीसेस कीजिए. ओके, एक पीस को जो है ऐसे इस तरह टेबल पे लटका दीजिए तागा बन के. दूसरे स्ट्रॉ को क्या करिए? पेपर के ऊपर रब करिए. ओके, दूसरे स्ट्रॉ का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पेपर के ऊपर रब करिए. अच्छी तरह रब करने के बाद ये जो दूसरा स्ट्रॉ है, ये वो स्ट्रॉ जो लटका हुआ है उसके करीब लेके आइए. ये बात जहन में रखिए कि उसको लगाना नहीं, जस्ट करीब लेके आना है. जब आप करीब लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रॉ जो लटका हुआ है वो इस स्ट्रॉ की तरफ खींचा जा रहा है. क्या वजह ये है बच्चों कि जो फ्री स्ट्रॉ है, ये फ्री स्ट्रॉ जब आप रबर की पेपर पे रब करेंगे तो ये स्ट्रॉ के चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है, स्ट्रॉ चार्ज हो जाएगा और ये जो चार्ज है, ये चार्जेस क्या करेंगे? ये लटके हुए स्ट्रॉ को अपनी तरफ खींचेंगे. ये जो खींचने का जो फोर्स है, ये एक फोर्स है जिसकी वजह से ये लटका हुआ स्ट्रॉ खींच जाता है. उस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So how can we define the force? The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatic force. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called an electrostatic force. Okay, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स. ये नेचुरल फोर्स है, ये कुदरती फोर्स है. ठीक है, ये किसी को लगा कि आपको ये फोर्स आपको किसी बॉडी पर लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है,
You know that a pen or a coin falls to the ground when it slips off your hand. कोई भी पेन, आपके हाथ में अगर पेन है या फिर कॉइन है, 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का है, अगर आपके हाथ से छूट जाए तो वो क्या होता, वो नीचे गिर जाएगा. When it slips off your hand, leaves and fruits also fall to the ground. ठीक है, जब झाड़ में फल अच्छी तरह पक जाते हैं तो क्या होता है, वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं. ठीक है, जमीन पे गिर जाते हैं, पत्ते भी जमीन पे गिर जाते हैं. Have you ever wondered why it is? कभी आपने सोचा इस तरह क्यों होता है? हाँ, ये सारी चीजें बच्चों नीचे क्यों गिर जाती हैं, कभी आपने गौर किया? ठीक है, कभी आपने गौर किया कि पानी का नल जब आप घर में नल खोलते हैं तो पानी नल से नीचे की तरफ गिरता है, क्यों? ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? इसी तरह जब बारिश होती है तो जहाँ पे उतार होता है पानी उस तरफ उतार की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि जमीन में एक कुदरती फोर्स होता है, अर्थ में एक कुदरती नेचुरल फोर्स होता है जो हर चीज को अपने तरफ खींचता है. हर चीज को जमीन हर चीज को, हल्की से हल्की चीज को भी जमीन अपने तरफ खींचती है. इसीलिए हल्का सा पेपर क्यों ना हो या फिर वजन पत्थर क्यों ना हो, जमीन की तरफ गिरने लगता है बगैर कोई ताकत लगाए, कि बिना कोई फोर्स, बिना कोई ताकत लगाए कि जमीन की तरफ हर चीज खींचने लगती है. ये जो खिंचाव है, ये जो अट्रैक्शन है, इसे फोर्स कहते हैं. और ये फोर्स का नाम एक खास नाम है. इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एक ग्रेविटी जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है. इसीलिए हर चीज ऊपर से जो निकलती है वो नीचे की तरफ गिरती है. नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रेशर. प्रेशर. कभी आपने कीले को लकड़ी में अपने हाथ से दबाने की कोशिश की? ठीक है, कीले का सर, कीले की जो नोक है लकड़ी में चुबाकर, कीले का जो हेड है ना, सर कीले का, कभी उसको अपने हाथ से चुबाने की कोशिश की? अच्छा, कोशिश की तो क्या आप कामयाब हो गए? क्या वो हाथ से चुभ गई? नहीं चुभी. क्यों? क्योंकि वो उसे उतना प्रेशर, उतना फोर्स नहीं मिला. ठीक है, उतना फोर्स नहीं मिला. तो प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मीनिंग क्या है? प्रेशर कहते किसे हैं? और कभी आपने 7th स्टैंडर्ड में अगर याद है आपको, अब तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था विंड्स एंड साइक्लोन्स पर. ठीक है, विंड्स एंड साइक्लोन्स में साइक्लोन कब क्यों होता है? हवा के प्रेशर की वजह से, हवा के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से विंड्स और साइक्लोन क्रिएट होता है. तो ये प्रेशर है क्या आखिर? क्या कोई रिलेशन है प्रेशर में और फोर्स में? प्रेशर में फोर्स में क्या कोई रिलेशन है? क्या कोई कॉन्टैक्ट है? ठीक है, क्या है आखिर, क्या है? अब और कभी आपके घर में लेडीज जो है, आपके सिस्टर, आपके मदर तरकारी काटते हैं, वेजिटेबल काटते हैं, ठीक है, या फिर फ्रूट काटते हैं. अगर जो नाइफ, जो छुरी, जो चाकू, जो बतई, कुछ भी हो, वो यूज करते हैं, अगर वो तेज ना हो तो तरकारी काटने के लिए, वेजिटेबल काटने के लिए ताकत ज्यादा लगती है. वही अगर छुरी तेज हो तो बहुत आसानी से तरकारी या फिर वेजिटेबल या फिर फ्रूट वगैरह कट जाता है. तो इसमें क्या वजह है? क्यों भाई जो छुरी तेज नहीं है, जो नाइफ तेज नहीं है, उससे क्यों नहीं कटता? जो तेज नाइफ उसी से क्यों कटता? तो इसके पीछे प्रेशर डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पर हथौड़ी से जो हम कीले को मार रहे हैं वो एक्चुअली फोर्स है. और फोर्स के बाद ये फोर्स जब इस कीले के सिर पे लगता है तो सिर पे एक प्रेशर क्रिएट होता है. वो प्रेशर कीले को जो है नीचे की तरफ दबाता है. ठीक है, फोर्स जब आप अपनी ताकत से हथौड़ी, जब आप अपनी ताकत हथौड़ी में लगाते हैं और हथौड़ी कीले को जब मारती है तो कीले के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. प्रेशर, वो प्रेशर ही कीले को लकड़ी में दबाने लगता है. तो प्रेशर क्या है एक्चुअली? प्रेशर इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया. और जो फोर्स है ये इतने ही एरिया में पड़ता है, सिर के इतने एरिया में पड़ता है, इसीलिए फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं.